ਜੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 8/81 ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ 7/81 ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ 81 ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਆਫ GP। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ Sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਇੰਟੂ r ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ r ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ r ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ r ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ r ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ r 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। r ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ a ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ r ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ r। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਆਫ GP ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ a ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ GP ਦੀ r ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1। r ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਓਵਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ r ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ r ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ r ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਸੋ Sn ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ a ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ r ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ r। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 3 ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ, r ਥਰਡ ਹੈ ਅਤੇ n ਫੋਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Sn ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ GP ਹੈ ਇੱਕ 0.15 0.015 0.0015। ਦੇਖੋ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਐਸ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਟਰਮ 20 ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ n ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 20, a 0.15 and common ratio r that is second term divided by first term। so second term है मेरे पास 0.015 divided by 0.15। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1000। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 100। ਸੋ 15 ਕੈਂਸਲਸ ਆਊਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 1/10। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1/10 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1/10 ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ Sn ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ Sn ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿੰਸ r ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਸੋ a ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ r ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ r। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ a 0.15 ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ r 1/10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n over 1 minus r that is 1 minus 1/10। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 15/100 ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 into 1 is 10 minus 1 that is 9/10। ਸੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 10 into 1
10 ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ 10 ਇਜ਼ 9 ਓਵਰ 10। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 15 ਓਵਰ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਓਵਰ 9 into 1 minus 1 over 10 raised to power n। So 1 0 cancels out, 3 3 is 9, 3 5 is 15। So आंसर की आ गया मेरे पास 5 over 10 into 3 30, 1 minus 1 over इसनों भी जे तक तुसीं सॉल्व करना चाहते हो सो ये फ्रैक्शनल पार्ट इत्थे आपां जो LCM है वो लैके सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ 10 रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 10 रेज टू पावर n। इत्थे इस तरह भी छड़ दोगे तो भी ठीक है, इस तरह सॉल्व कर दोगे तद भी ठीक है, जो फर्दर भी सॉल्व कर दोगे तद भी ठीक है। वैसे इत्थे तक सफिशिएंट है। सो ये साडा हो गया आंसर जेकर साडे पास सिंपल कोई जीपी दिती है। इस तरह एक पार्ट असीं होर ले लैंदे हां, ये भी साडे पास जीपी है, ये साडे पास है √7 सम टू n टर्म्स। n असी सबस्टिट्यूट नहीं करना है, n नूं n ही रखना है। सो कॉमन रेशो की है T2 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज़ √21 डिवाइडेड बाई √7। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये मेरे पास की आ जाएगा √3। सो कॉमन रेशो जी है √3 दिस इज़ ग्रेटर दैन 1 क्योंकि √3 की वैल्यू होंदी 1.73। सो एक तो वड्डी होगी। सो आर ग्रेटर दैन की है 1 है। तो असीं SN के लिए जो फार्मूला यूज़ करांगे उहदे विच आर अगे आएगा। सो SN इज़ इक्वल टू A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सो A मेरे पास √7 है, आर मेरे पास √3 है रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। देखो तुसीं डिनोमीनेटर नूं रैशनलाइज कर सकते हो जे करना चाहो। दैट मीनस √3 प्लस 1 दे नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसनूं, जां तुसीं इत्थे भी जे आंसर लैफ्ट करना चाहो इत्थे भी लैफ्ट कर सकते हो। तो सिंपलीफाई कर दिंदे असीं इसका जिहड़ा हर है डिनोमीनेटर है इसनूं रैशनलाइज जरूर कर दिंदे आ। सो a माइनस बी a प्लस बी ये की बन जाएगा मेरे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर ऊपर मेरे पास आ जाएगा √7 इंटू √3 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। सो नीचे बन जाएगा मेरे पास 3 स्केयर कैंसल आउट हो जाएगा रूट नाल। 3 माइनस 1 इज़ 2। सो √7 ओवर 2 इंटू √3 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। सो ये की होगा साडा सम ऑफ n टर्म्स। इस तो बाद असीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो जोड़े कुछ क्वेश्चन ने इंपॉर्टेंट ने वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साढ़े पास NCERT का। एवेलुएट समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। सो समेशन सम करना है असीं इस चीज़ का। सो पहला मैंने एक्सपेंड कर लेना क्योंकि दो टर्म्स ने मेरे पास। दैट इज़ समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to 11 3 रेज टू पावर k। सो ये सैक्शन के फोकस करते हैं पहले आप k इज़ इक्वल टू 1 to 11 3 रेज टू पावर k। इसका मीनिंग की है कि k जोड़ा है 1 तो लैके 11 तक वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ये बनेगा 3 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3 सो ऑन कितने तक जाना सी 3 रेज टू पावर 11 तक। सो एक तरह नाल ये की बनती है साडे पास जीपी बन रही है। ए साडे पास 3 आंदा इस जीपी का 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कॉमन रेशो भी की है 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां ने 11 ने। सो इस सैक्शन दे विच असीं सम ऑफ जीपी का जिहड़ा फार्मूला यूज़ करांगे तो आर साडा ग्रेटर दैन 1 है। सो वो वाला फार्मूला यूज़ करांगे। तो दूसरा रहेगा साडे पास ए सैक्शन। सो अक्सर जिहड़े स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे विच एक मिसटेक करते हैं कि इस दे उपर तो फार्मूला अपलाई कर देंगे ने जीपी का
ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ 2 ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ 1 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 0, 2 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 11 ਵਾਰ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ, 1 2 3, ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ 2 ਇੰਟੂ 1 2 ਇੰਟੂ 1, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ 11, 2 ਇੰਟੂ 11, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ n ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ a ਹੈ, ਸੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ a ਟਾਈਮਸ n ਆਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ a ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ 11 ਦੂਣੀ 22 ਪਲੱਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੀ ਪੀ ਹੈ। ਸੋ a ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ n ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 11। ਸੋ ਐਸ ਐਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਇੰਟੂ r ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n, 3 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ r ਮਾਈਨਸ 1, ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਮਾਈਨਸ 1। ਸੋ ਐਸ ਐਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, a इंटू r रेस टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सो a r n साढ़े पास सॉरी कितना है 11 है, तो असी इत्थे 11 सबस्टिट्यूट कर सकते हैं ओवर r माइनस 1। सो रिजल्ट की आएगा मेरे पास 22 प्लस 3 इंटू 3 रेस टू पावर 11 माइनस 1 ओवर 2। सो इसनों असी सॉल्व भी कर सकते हैं अगे जेकर सॉल्व करना है, ਜਾਂ इसनों इत्थे भी असी लैफ्ट आउट कर सकते हैं। सो 22 प्लस 3 विच मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रेस टू पावर 12 हो सकता है माइनस 3, बट जरूरत नहीं है, ਜਾਂ तुसी लिख सकते हो 3 ओवर 2 इंटू 3 रेस टू पावर 11 माइनस 1, ये भी सफिशिएंट है ये आंसर, क्योंकि 3 की पावर 12 जी सॉल्व करनी काफ़ी औखा काम है, वड्डी पावर है। सो असीं इत्थे आंसर छड्ड देंगे, जेकर छोटी पावर होंदी फिर इसनूं सॉल्व कर सकते सी फरदर असीं। सो बस इस दे विच एक ट्रैप है ये वाला, इसका ध्यान रखना है कि एग्जामिनर तुहाडे इस सैक्शन दे विच मार्क्स जिहड़े कट ना देवे कि तुसीं इत्थे 2 नूं 2 ही रख लो कि ये वाली फॉर्मूला यूज़ ना करो a टाइम्स n वाला, कि 11 दे नाल मल्टीप्लाई भी होना इसने, कि जिहड़ा 2 है वो 11 टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, दैट मीनस 11 दूनी 22, 11 गुणा 2 की होगा साढ़े पास 22 होएगा। तो नैक्सट पार्ट साढ़े पास जी पी हैगा ही है। दोस्तों इस वीडियो के असीं सारे उही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिहड़े कि सम के फार्मूले के बेस ने, सम ऑफ जी पी दे। सो नैक्सट साढ़े पास है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जी पी इज़ नीडड टू गिव दी सम 120। सो सानू सम गिवन है एस एन, दैट इज़ 120। सो असीं फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीनस एन जिहड़ा है साडे कोल मिसिंग है, एन इज़ मिसिंग। सो ए साडे पास हैगी है दैट इज़ 3, तो 3 स्केयर 3 क्यूब, सो आर की होएगा किहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं असीं 3 दे नाल, जां तुसीं इहनूं सैकंड टर्म डिवाइडेड बाय फस्ट टर्म करके भी फाइंड कर सकते हो, 3 स्केयर डिवाइडेड बाय 3। सो एक 3 कैंसल हो जाएगा, रह की जाएगा 3। सो साडे पास कॉमन रेशो भी है, ए भी है, फस्ट टर्म भी है, तो सम भी है, तो जिहड़ी साडी कॉमन रेशो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1, सो एक तो वड्डी भी है। सो असीं एस एन का फार्मूला जिहड़ा यूज़ करांगे, एस एन इज़ इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सो एस एन 120 है 120, ए साढ़े पास 3 है इंटू आर साढ़े पास 3 है, 3 रेस टू पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 इज़ 2। सो 3 सामने सामने कैंसल आउट हो सकता है, 3 1 इज़ 3 40 दे। सो 40 इज़ इक्वल टू
3 रेज़ टू पावर n माइनस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये मेरे पास की बन जाएगा 40 गुणा 2 80। दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 लैफ्ट साइड पर आएगा, इस साइड नैगेटिव है, इस साइड की हो जाएगा ये पॉजिटिव। दैट मीन्स 81 is equal to 80 plus 1 is 81, that is 3 raised to power n। सो इत्थे साडे पास हर बार ये पावर बननी ही चाहिए है सही। जेकर साडे पास सही पावर नहीं बन रही तो n साडा की हो जाएगा फ्रैक्शनल हो जाएगा। दैट मीनस कि n जिहड़ा है नंबर ऑफ टर्म्स जिहड़ियां ने पॉसीबल नहीं हैगियां कि सम साडे पास ही आ जाए। सो हमेशा जिहड़ा n आना चाहिए साडे पास वो की आना चाहिए 1 2 3 4 5 इस फॉर्म दे विच चाहिए सानू नैचुरल नंबर टाइप। सो 81 नूं असीं की लिख सकते हैं 3 × 3 3 3 9 3 27 30 81 3 × 3 is 9 27 81 दैट मीनस 3 रेज़ टू पावर n। सो ये की आ गया 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। सो जो असीं कंपेयर करांगे तो साडे पास n कितना आ गया n इज इक्वल टू 4। सो सानू कितनियां टर्म्स चाहिए ने जी पी दियाँ 4 टर्म्स टू गिव द सम 120। सो चार टर्म्स जिहड़ियां तुसीं ऐड करके भी देख सकते हो कि 120 बनता है या नहीं बनता, क्योंकि छोटियां ही ने 4 ही ने। सो n की है साडे पास n इज इक्वल टू 4। नैक्सट है साडे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा जिहा डिफरेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फस्ट 3 टर्म्स ऑफ जी पी 16 दैट मीनस सानू S3 गिवन है, सम ऑफ नैक्सट 3 टर्म्स इज 128। हुण देखो नैक्सट 3 टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, सानू पहले तो लैके एंड तक ही जाना पऊगा। मीनस टू से की है कि जेकर जी पी है तो मैनू फस्ट टर्म तो लैके 6th टर्म तक ही जाना पऊगा। ये नहीं है कि मैं पहला 3 का सम 3 तक कर लिया जी, चौथी तो लैके 6वीं तक कोई डिफरेंट फार्मूला है, ये पॉसीबल नहीं है। सो जेकर मैं सम अप करना है जी पी का तो फस्ट टू 6th, पहले तो 6वीं, इस तरह फस्ट टू 3rd, इन बिटवीन सम नहीं कर सकते असीं, ये वास्ते साडे पास कोई फार्मूला नहीं है। सो दोस्तों ये नाल दा क्वेश्चन साडे कोल एक AP दे विच भी आया होया है। जेकर असीं उहदी गल करिए उस दे विच भी साडे पास इन बिटवीन इस तरह सम दिता होया सी, तो असीं उहदे विच एक कंसैप्ट यूज़ कीता सी कि सम ऑफ जिहड़ियां 6 टर्म्स उहने लिया सी कि नैक्सट 6 टर्म्स किवें आउणगीਆਂ, 4 तो लैके 6 तक किवें सम आना सी। असीं करिया सी सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स, इदां कर दांगे असीं। जे असीं ये वाला लॉजिक इत्थे ਇਹਦਾ सम करना है 4 तो लैके 6 तक का, तो साडे कोल इक्वेशन बन जाती है कि ये वाला S6 माइनस S3 किहदे इक्वल आएगा 128 दे। तो जे असीं इन्हां नूं एड अप कर लीए S3 कैंसल हो जाएगा, S6 रह जाएगा साडे कोल, जिस तरह असीं AP दे विच कीता सी। बट उहदे विच की है कि AP दे विच जिहड़ियां साडीआं टर्म्स सी वो A प्लस दे विच सी, तां A जिहड़ी वो कैंसल आउट हो सकदी सी कि असीं सबट्रैक्ट करता जी तां ये कट गया। बट इस बार साडे कोल की समस्या है, जिहड़ा साडा फार्मूला है उहदे विच साडे पास रेशो दे विच है, डिवीजन दे विच है, SN किवें आ रिहा है A इंटू R रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1 आ रहा है। सो असीं AP वाला जे असीं कंसैप्ट यूज़ करते हैं एडिशन ਜਾਂ सबट्रैक्शन वाला, साडा A जिहड़ा वो कैंसल आउट नहीं होना है। सो सानू इत्थे डिवीजन करनी पएगी तां कि साडा जिहड़ा A है वो कैंसल आउट हो जाए। साडे पास n सानू पता है 3 है, तो साडे पास R रह जाए इकल्ला, तो साडा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो उस वे दे विच सानू S3 सम ऑफ फस्ट 3 टर्म्स किवें लेना चाहिए है। फस्ट टर्म A, सैकेंड टर्म A इंटू R, तो थर्ड टर्म A इंटू R स्केयर, ये की बनूगा 16। जे मैं S3 का फार्मूला यूज़ कर लेना है तो S6 वास्ते जी नैक्सट 3 टर्म्स का सम है वो वास्ते मेरे पास कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं। सो इसलिए मैं फार्मूले वाली साइड में नहीं जा रहा। इत्थे मेरे पास की आ गया A की आ गया कॉमन 1 प्लस R स्केयर इज इक्वल टू 16, मेरी होगी फस्ट। सो सम ऑफ नैक्सट 3 टर्म्स देखो वो हर दे विच A आऊगा, लाइक 4th टर्म T4 की होएगी, तो देखो 3rd तक तो मैं ले चुके हैं, T4 होएगी A R रेज़ टू पावर 3, नैक्सट A R रेज़ टू पावर 4, नैक्सट A इंटू R रेज़ टू पावर 5, ये T4 होगी साडी 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म। देखो फस्ट 3 का सम, नैक्सट 3 का सम, ये कितना आना चाहिए 128। सो देखो A सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन है, तो
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ a ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, r ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ r ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, r ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, a ਇੰਟੂ r ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ar3 ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, 1 ਪਲੱਸ r ਪਲੱਸ r ਸਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 128। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੇਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਇਕੱਲਾ r ਕਿਊਬ। ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ 2 ਬਾਏ 1, ਡਿਵਾਈਡ 2 ਬਾਏ 1। ਸੋ 2 ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, a ਇੰਟੂ r ਕਿਊਬ 1 ਪਲੱਸ r ਸਕੇਅਰ is equal to 128 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ a ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ r ਸਕੇਅਰ is equal to 128 over 16। a cancels out, this cancels out, 16 8 is 128, that means r क्यूब की आ गया मेरे पास 8। सो 8 किस दा क्यूब है, 2 क्यूब है, 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8। सो पावर सेम ने तो बेस भी सेम होएगा, दैट मीनस आर की आ गया मेरे पास 2। सो कॉमन रेशो सानू पता लग गई है कि आर की है साडा 2 है। सो आर नूं मैं फस्ट दे विच पुट कर सकदा 1 प्लस 2 स्केयर, तो इत्थों मैनू ये पता लग जाएगी। दैन असीं इहदा फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जी पी फाइंड कर सकते हैं, एस एन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए तो आर सानू पता लग गया है। सो r इज़ इक्वल टू 2 असीं इस इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट कर दिंदे आ, a इंटू 1 प्लस r की है 2 है, 2 स्केयर इज़ इक्वल टू 16। सो a की आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 स्केयर इज़ 4 इज़ इक्वल टू 16। 4 ते 2 6 ते 1 7, दैट इज़ a इंटू 7 इज़ इक्वल टू 16, दैट मीनस a की आ गया मेरे पास, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, दोनों साइड आप 7 के नाल की कर दें डिवाइड कर दें। सो a आ गया मेरे पास 16 ओवर 7। सो सानू एस एन पूछा है, सो एस एन का सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है असीं, a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, क्योंकि r साडा की है एक तो वड्डा है 2 है, सो ये फार्मूला यूज़ होएगा, दैट मीनस a 16 ओवर 7 इंटू r साढ़े पास 2 है, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 की होंदा है 1 होंदा, इहनूं लिखण दी लोड़ नहीं है, दैट मीनस दिस इज़ दी आंसर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जी पी। नैक्सट साढ़े पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इस वीडियो के असीं उही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिहड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ने, तो बिल्कुल एस एन के फार्मूले के ही बेस ने। सो कुछ क्वेश्चन स्किप भी होए होणगे, मे बी वो किसी होर टॉपिक के बेस्ड होण, लाइक ज्योमैट्रिकल मीन के बेस्ड होण। सो गिवन अ जी पी विद a 729 एंड 7th टर्म 64, फाइंड S7। असीं सम फाइंड करना है, गिवन की है सानू, a गिवन है, 7th टर्म गिवन है, सो T7 दैट इज़ इक्वल टू 64। साढ़े पास कॉमन रेशो नहीं है, एस एन का फार्मूला असीं तद ही यूज़ कर सकते हैं जेकर साढ़े पास कॉमन रेशो होवे तद। सो पहला सानू कॉमन रेशो फाइंड करनी पेगी, दैट मीनस T7 के लिए फार्मूला होंदा है a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1, 7 माइनस 1 इज़ 6, 64। सो a 729 है इंटू r रेज टू पावर 6 इज़ इक्वल टू 64, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 729, तो यह है 64/729। देखो r की पावर की है इधर 6 है, तो इधर भी सानू 6 पेयर्स बनाने पैणगे, 6 पेयर बनाने पैणगे, 64। तो 64 साढ़े पास बनता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखो 2 के 6 पेयर ही बनने। इस तरह 729 3 तीए 9 तीए 27 तीए 81 तीए 243 गुणा 3 729, ये बन गए 6 पेयर।
हमेशा, क्योंकि हुण 64 है, देखो ये 3 पेयर भी बन सकते हैं, 2 पेयर भी बन सकते हैं, बट तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसीं किन्ने पेयर बनाने ने। सानूं पेयर किन्ने चाहिए ने, 6 चाहिए ने, 6 का सैट बनाना असीं, ਤਾਂ ਇਹ वाला 3 ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2 ਦਾ ਸੈੱਟ 8 8 64। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਸੈੱਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, 6 ਵਾਲਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗੀ 6। ਸੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2/3। ਸੋ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ए भी पता है सानू, तो असी फाइंड करना है S7, सम ऑफ फस्ट 7 टर्म्स। दैट मीनस S7 इज इक्वल टू A इंटू, देखो R की है मेरे पास लेस दैन 1 है, छोटा है एक तो मैं फार्मूला लवांगा 1 माइनस R रेज टू पावर N ओवर 1 माइनस R। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुसीं यही चूज़ करना है फार्मूला। जेकर तुसीं दूसरा फार्मूला भी गलती नाल अप्लाई कर दिंदे हो तद भी तुहाडा आंसर आ जाएगा, बट वो की है कि नैगेटिव साइन कॉमन आके तुहानूं इत्थे कैंसल आउट करना पएगा, आंसर उही आना है। बट तुहाडी ईज़ दे लई आपां इह फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो ए की है मेरे पास 729 है, 1 माइनस R 2/3 रेज टू पावर N ओवर 1 माइनस 2/3। सो इत्थे सानूं एलसीएम लेना पएगा, 3 माइनस 2 आएगा साढ़े पास, दैट मीन्स 729 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर N ओवर 3 माइनस 2/3। सो आंसर मेरे पास की आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1 होंदा है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू 729, नीचे 3 माइनस 2 की रह गया 1, 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर N। सो 729 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर ਦਿਓ, ये साढ़े पास आंसर आ जाएगा 2187 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर N साढ़ा सबस्टिट्यूट होने तो रह गया है, N की है साढ़े पास 7 है, सो 2/3 रेज टू पावर 7। सो ये साढ़ा की हो गया S7। सो ये कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे सी, इत्थे बाय चांस रह गया है तो इत्थे सबस्टिट्यूट करता है तो आंसर सेम ही रहना साडा। सो ये इंपैक्ट नहीं कर रहा साडे आंसर में 2/3 रेज टू पावर 7। सो दोस्तों जेकर तुसीं इसनूं अगे भी सॉल्व करना चाहुंदे हो तो कर सकते हो, क्योंकि जो 2187 2187 साडे पास आया ना, 3 की पावर 7 ही है। जे तुसीं ध्यान नाल देखिए बाहरली साइड तो इसनूं असीं सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 2187। जदों असीं इस सैक्शन नूं सॉल्व करांगे ना 2 की पावर 7, दैट मीनस 2 7 टाइम्स 2 इस तरह, तो ये साढ़े पास आ गया 4 16 64 दूनी 128 128। इस तरह 3 रेज टू पावर 7 33 9 9 9 तो 729 गुणा 3 आऊगा साढ़े पास, तो यह बन गया मेरे पास 2187 2187। सो जो मैं इतने एलसीएम लैके सॉल्व करूँगा तो ये वाली टर्म जी कैंसल आउट हो जाएगी। सो इत्थे असीं बटरफ्लाई मैथड जां इसका जो डिनोमीनेटर है उसनूं इक्वेट कर लैने आ 2187। सो इत्थे जाएगा 2187 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 2187। सो कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2187 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 128 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2059। सो ये साडा की हो गया आंसर। बट जेकर तुसीं इत्थे भी लैफ्ट करता है, क्योंकि बाकी के जिहड़े क्वेश्चन ने मोस्टली असीं इस फॉर्म दे विच लैफ्ट कीते ने, तां मार्क्स जिहड़े तुहानूं पूरे असाइन हो ही जाणगे, कोई एडा इशू नहीं है कि तुसीं इत्थे तक जाना है। ये भी सही सी, ये भी सही है। नैक्सट है साडे पास क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड अ GP फॉर विच सम ऑफ फस्ट 2 टर्म्स इज़ -4। फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म। 2 कंडीशन है साढ़े पास, सम ऑफ फस्ट 2 टर्म्स। सो S2 इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं A इंटू A R सम ऑफ फस्ट 2 टर्म्स इज इक्वल टू -4। A कॉमन आ जाएगा इतने,
a इंटू 1 प्लस आर इज़ इक्वल टू -4 फस्ट इक्वेशन, क्योंकि सम का फार्मूला लाने नालों बैटर है कि असीं ये लिख लीए, ईजी है। एंड फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म T5, फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई T3 थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स थर्ड टर्म। सो T5 का फार्मूला की है साढ़े पास A इंटू आर रेज टू पावर 4 n-1 5-1 की होंगे 4 होंगे 4 इंटू T3 का फार्मूला की है A इंटू आर रेज टू पावर n-1 3-1 की होंगे 2। देखो A कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड, आर स्केयर इधर है, आर रेज टू पावर 4 इधर है, 2 इधरों छड़ देंगे 2 इधरों छड़ देंगे, दैट मीनस आर स्केयर कैंसल हो जाएगा, रह की जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू 4। सो आर की आ गया मेरे पास 4 किस दा स्केयर हो सकता है +-2 का स्केयर हो सकता है, तो आर आ गया मेरे पास +-2। सो ये की होएगा जो आर मेरे पास +-2 हो जाएगा, जो मैं आर इत्थे +2 पुट कराँगा तो ए कुछ होर बनेगा, जो -2 पुट कराँगा तो ए कुछ होर बनेगा। साढ़े पास जड़ियाँ ए ने वो 2 आएगियाँ साढ़े पास। सो साड़ी जी GP चेंज हो जाएगी, 2 बेस के लिखनी पेगी सानू। सो पुट आर इज़ इक्वल टू पहला +2 पुट कर लें n-1। सो आर इज़ इक्वल टू +2 इत्थे पुट करते हैं A 1 + 2 दैट मीनस A की आ गया मेरे पास A इंटू 3 इज़ इक्वल टू -4। सो A की आ गया मेरे पास -4/3। ये फस्ट केस हो गया साडा। इसी तरह सैकेंड केस जो साढ़े पास आर की होएगा -2 होएगा, वैन आर इज़ इक्वल टू -2 तो ए की बनेगा A इंटू 1 - 2 इज़ इक्वल टू -4 तो A इंटू -1 इज़ इक्वल टू -4। सो ए की आ गया मेरे पास 4। साढ़े पास 2 केस बन गए ने, A -4/3 है तो कॉमन रेशो की है इत्थे 2 है, A इज़ इक्वल टू 4 है तो कॉमन रेशो की है -2 है। सो साढ़े पास 2 केस हो गए ने दोस्तों, ये भी साढ़े पास A -4/3 है, R 2 है, A 4 है तो R -2 है। तो असीं इहदे वास्ते GP फाइंड करनी है। सो GP दे विच A स्टार्ट करांगे -4/3 तो केस 1 है साडा, कॉमन रेशो 2 है तो 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके की आएगा -8/3 -16/3 -24/3। सो इस तरह चलता जाएगा। दूसरा केस साढ़े पास की बनेगा, सैकेंड केस A 4 है साढ़े पास, GP सॉरी कॉमन रेशो -2 है, -8 +16 -24 +48 इस तरह चलता जाएगा। साढ़े पास ये वालियां 2 GPs जिहड़ियां ने ये बन जाएगियां। नैक्सट साढ़े पास क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, फाइंड द सम टू n टर्म्स। पहली गल तो देखो ये सम टू n टर्म्स है तो साढ़े पास सीक्वेंस गिवन है, GP नहीं है, GP वर्ड नहीं यूज़ किया उसने, ज्योमैट्रिकल प्रोग्रेशन। सो 8 88 888 जे बीइंग एग्जामिनर बीइंग टीचर जे मैं पेपर सैट करना हो तो ये क्वेश्चन मैं हर बार एग्जाम के पूछा। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म के भी आ सकता है, ये इस फॉर्म भी लिख सकते हैं 7 77 777 ईवन 9 च आ सकता है। तो इस तरह 2 3 कोई भी डिजिट आ सकता है, क्यों क्योंकि इसनों ऐड करने का एक स्पैसीफिक मैथड है इसनों सॉल्व करने का। तो देखो ये साढ़े पास GP तो है नहीं है, मैं इसमें इस फॉर्म लिख सकता सम करना है 8 + 88 + 888 सो ऑन। देखो ये GP नहीं है तो पहला मैंने कोशिश करनी पऊगी कि मैंने GP दे विच कन्वर्ट करा। दूसरी है कि ये साढ़े पास n टर्म्स का सम पूछा गया है, अगे असीं एक इनफिनाइट GP भी पढ़नी है। सो एग्जाम के इन्होंने दोनों नूं आपां ने कन्फ्यूज़ नहीं होना ये कि यह सम ऑफ इनफिनाइट GP की गल हो रही है, n टर्म्स लिखा साढ़े पास। सो जो मैं ध्यान नाल देखा ये मेरे पास 8 जो कॉमन आता है, जे इदा की सीक्वेंस होएगी 7 कॉमन आएगा, ये 9 कॉमन आएगा। सो मैं की करदा इत्थे ते 8 कॉमन ले लैना। सो विच की रह जाएगा 1 8 1 इज़ 8
11 इज़ 88 111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, क्योंकि सानू n टर्म्स का सम करने के लिए किया गया है। दैट मीनस कोई ना कोई फिक्स वैल्यू। सो हुण की यह GP बन गई है। की नूं मैं किसी दे विचों घटा के कुछ ऐड करके GP बना सकदा है। लाइक ये 1 है, ये 10 प्लस 1 11 बन जाएगा, ये 100 प्लस 11 बन जाएगा। देखो मुरले पासे 10 प्लस 1 100 प्लस 1 या 1000 प्लस 111, एक पासे तो 10 100 1000 GP बन रही है, पर पिछे जो 11 111 बन रहा है वो साढ़े पास नहीं ठीक आ रहा। सो ये वास्ते मैं की करदा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। ये 3 स्टैप स्पैसीफिक ने, यही फॉलो करने हर बार, इन्होंने तुहानूं याद ही करना पैना है। मल्टीप्लाई भी करना है तो डिवाइड असीं बाहर कर लैंदे आ तो मल्टीप्लीकेशन विच, ताकि 9 नाल 9 एक तरीके नाल कैंसल हो रहा। 9 इंटू 1 इज़ 9, 99 999 सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो देखो कुछ मेरे पास सही होने जा रहा है। 9 नूं मैं किवें लिख सकदा, 10 घटाओ 1 9 10 माइनस 1, यह 100 माइनस 1, यह 1000 माइनस 1। देखो सारे 1 आ जाएगा। नैक्सट टर्म मेरे पास होगी 4 9 होंगे, दैट इज़ 10,000 माइनस 1। सो एक तरीके नाल मेरे पास GP फॉर्म हो रही है, GP बन रही है। देखो ये 10 माइनस 1 9 नूं लिखे प्लस 99 नूं लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 नूं लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, इसनूं लिख सकता मैं 10,000 माइनस 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स, क्योंकि इनफिनाइट GP नहीं है, n टर्म्स ने साढ़े पास। सो देखो दोस्तों फ्रंट वाला पार्ट जोड़ा ये वाला 10 100 1000 10,000 ये तो साढ़े पास GP बन रही है। ये साढ़े पास 10 हो जाऊगा तो D भी साढ़े सॉरी कॉमन रेशो भी साढ़े पास 10 हो जाएगी, 10 नाल मल्टीप्लाई हो रहा सारा ही। तो जो सैकेंड पार्ट वो सारे 1 1 1 1। देखो कितनी टर्म्स ने, n टर्म्स ने। कहने तो भाव की है कि एक कितनी बार आऊगा, n टाइम्स आऊगा। जो 7 टर्मां ने तो 7 बार आऊगा एक, जो 50 टर्मां ने 50 टर्म्स ने तो 50 बार आऊगा, जो 100 है तो 100 बार आऊगा। इत्थे n टर्म्स ने मीन सानू नहीं पता कितनी टर्म्स चूज़ करनी, कितनी भी चूज़ कर सकते हैं असीं। तो जिहड़ा 1 है ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। सो फ्रंट तो साढ़े पास GP बन गई है, उत्थे असीं सम ऑफ GP की कंसैप्ट यूज़ कर लांगे। लास्ट पार्ट साडा सम अप हो ही गया है 10, एडिशन वाला पार्ट असीं सैपरेट कर लैंदे आ 10,000 सो ऑन n टर्म्स। तो माइनस की हो रहा साढ़े पास 1 हो रहा है कितनी बार, n टाइम्स। तो मैं इत्थे माइनस की लिख दिना है n। सो ये स्टैप जो तुहानूं समझ आ गया, मैं फिर तो रिपीट कर दिना एक बार। देखो इत्थे भी 1 है फस्ट टर्म है, ये सैकेंड टर्म है फिर 1 है इत्थे, ये थर्ड टर्म है फिर 1 है, फोर्थ टर्म है फिर 1 है, nth टर्म के भी की आएगा 1 आएगा। जो 10 टर्मां ने तो 10वीं टर्म के भी 1 आएगा। इस तरह जो 100 ने तो 100वीं के आएगा। तो इत्थे जिन्नी बार 1 होया साढ़े पास, जे n टाइम्स होया तो n, जे 10 बार 1 आया तो इत्थे मैं की लिखदा 10, क्योंकि एक नूं 19 बार जोड़िया सी तो अगे की है साइन नैगेटिव, तो इत्थे की ले लिया मैं नैगेटिव। ये मेरे पास GP बन गई है। ये 10 है तो कॉमन रेशो R वो भी 10 है। देखो 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 10 10,000। तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही लेना सी, जिन्नियां भी सानूं कईयां गईयां होणगियां 5 10 15 20 जिहदा भी सम करना सी पेपर दे विच सानूं n टर्म्स ही आना है। सो इत्थे मैं सम ऑफ GP का फार्मूला ला लैना 8/9 इंटू A दैट इज़ 10 इंटू R एक तो वड्डी है 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1। ये वाला साडा n है पिछे माइनस n। इसनूं असीं फरदर सिंपलीफाई कर सकते हैं। 10 माइनस 1 की हुंदा साडे पास, डिनोमीनेटर दे विच की आ जाएगा 9। सो 10 जो मल्टीप्लाई हो सकता है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर n की बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1। सो 10 इंटू 1 माइनस 10 माइनस n। इत्थे असीं LCM लै सकते हैं, बटरफ्लाई मैथड यूज़ कर सकते हैं। 8/9 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस
10, 9 into 1 is 9 minus 9n over 9. सो 9 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 over 9 into 9 is 81, विच की आ गया साढ़े पास 10 raised to power n plus 1 माइनस 9n, डिक्रीजिंग ऑर्डर 'ਚ लिख देने पावर असी माइनस 10। सो ये साडा की हो गया है आंसर। सो दोस्तों कोई भी तुहाडे पास क्वेश्चन आ जाए, जे असीं अपने क्वेश्चन दे नाल इसनूं कंपेयर करिए 7, 77, 777 सो ऑन, तो जिहड़ा विच कंसैप्ट बनना है वो हर बार इदां ही बनना है कि असीं पहला 7 कॉमन लेना है, 1 1 1 बनना है, तो फिर असीं 9 ते नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड करना है, 9 9 बनना है। यही स्टैप फॉलो होने हर क्वेश्चन दे विच, तां इहने 10 - 1 दे विचों सबट्रैक्ट होना इस तरह। सो जिहड़ा विच टर्म बननी है, जिहड़ा विच आंसर आना यही आना है, हर बार यही आना है 10 raised to power n plus 1। कोई फर्क नहीं पैना कि इत्थे 7 आ रहा है, इत्थे 2 आ रहा है, इत्थे 5 आ रहा है, डजेंट मैटर, सिर्फ बाहर चेंज आनी है। बाहर भी देखो की चेंज आ सकती है, इत्थे तो 9 ही रहना है सम ऑफ GP दे विच, 9 नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड किया 9 into 9 81 ही आना है। सो ये टर्म दे विच डिफरेंस आना है, जे 7 है तो इत्थे 7 आ जाएगा, इत्थे 5 है तो इत्थे 5 आ जाएगा, मेरे मुताबिक होर तो कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। तो आंसर भी जिहड़ा इहदा पैट ही है, यही आंसर आना है, सिर्फ इत्थे वैल्यू चेंज होनी है 7 over 81, 9 over 81, जो भी तुहाडा ये वाला नंबर बनना है तुहानूं क्वेश्चन 'च देना है वही आंसर आना है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ, 7 77 8 88 ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 0.7 0.77 0.777। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ कि देखो जे मैं डेसीमल हटाने की कोशिश करा 7 over 10 77 over 100 नीचे 1000 आएगा। सो वो कुछ कॉमन लेने वाला कंसैप्ट नहीं बनता है, ये 10 होएगा, ये 100 होएगा, ये 1000 होएगा। सो कॉमन वाला कोई कंसैप्ट नहीं है। बट जे मैं देखा 7 तो कॉमन आ ही रहा है, जिवें लास्ट क्वेश्चन साढ़े पास 8 आया सी। सो 7 मैं सारे 7 के नाल कॉमन ले लेना, 7 नाल डिवाइड कर देना है, तो 7 की आ गया बाहर मेरे पास, विच की रह जाएगा 0.1 0.11 0.111, नेक्स्ट टर्म आएगी 0.111 सो ऑन। सम टू कितने तक करना सी n टर्म्स, इनफिनाइट GP नहीं है, अप टू n टर्म्स है साढ़े पास। सो सेम पहले की तरह 9 के नाल मल्टीप्लाई, 9 के नाल डिवाइड। सो दैट मीनस 7 9 के नाल डिवाइड करना बाहर, तो 9 नाल मल्टीप्लाई विच कर देने 0.9 0.99 प्लस 0.999 0.999 सो ऑन अप टू n टर्म्स। सो दोस्तों ये की आ गया साढ़े पास 0.9। जे मैं ध्यान नाल देखा तो ये किवें बन सकता, ये मैनू एक तो छोटा है, ये भी एक तो छोटा है, ये भी एक तो छोटा है, ये भी एक तो छोटा है, दैट मीनस सारिਆਂ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सबट्रैक्ट करके आना इन्होंने। 10 का रूल नहीं रह गया, पिछली बार असीं 10 यूज़ किया, 10 - 1 100 - 1। इस बार सारिया वैल्यूज़ जिहड़ियां ने एक तो छोटियां ने, तो मैं की लिखांगा इत्थे 1 - 0.1। देखो ये स्टैप तुहानूं बड़े ध्यान नाल देखण दी लोड़ है। एक दे विचों 0.1 घटाता 0.9 आ गया। इस तरह यह 100 दे विचों एक घट है, मीनस 1 - 0.01। सो दोस्तों इसनूं बड़े ध्यान नाल देखण दी लोड़ है, क्योंकि देखो सारा की है एक तो छोटा है, एक दे विचों मैं 0.1 सबट्रैक्ट किया है, 9 बन जाएगा। इस तरह 1 दे विचों मैं इत्थे की सबट्रैक्ट करा कि 0.99 बन जाए, दैट इज़ 0.01। इत्थे भी 1 - 0.001। क्यों? क्योंकि इत्थे 3 सिग्नीफिकेंट फिगर्स ने। देखो इत्थे 2 ने तो इत्थे 2 आईयां ने, इत्थे 3 ने तो इत्थे 3 आईयां ने, इत्थे 1 है तो इत्थे भी डेसीमल तो बाद एक डिजिट आई है। सो याद करने का तरीका ईजी है। इत्थे मेरे पास डेसीमल तो बाद 4 डिजिट ने, तो 1 - 0 डेसीमल तो बाद कितनियां डिजिट्स आउणगियां, 4 आउणगियां। सो ऑन अप टू n टर्म्स। लास्ट टाइम साडे कोल 1 पिछे सी ते असीं किहा सी कितनियां टर्म्स ने, ये n टर्म्स ने। मीनस ये फस्ट टर्म है, सैकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। जिन्नी बार ये टर्म्स आउणगियां 1 उन्ने टाइम आएगा। सो 1 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। दैट मीनस
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ 1 1 1 1 ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ n ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ n ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ, ਲਾਈਕ 5 ਵਾਰ ਆਇਆ 7 ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5 ਜਾਂ 7। ਜੇ ਇੱਥੇ n ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ ਤਾਂ n ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਈਨਸ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 सो ऑन अप टू n टर्म्स। सो ये मेरे पास की बन गई है GP। देखो फस्ट टर्म 0.1 बनती है ए तो कॉमन रेशो देखो 1/10 के नाल डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा 1/10, छोटी हो गई टर्म ये होर छोटी होगी 1/10 नाल मल्टीप्लाई करने तो बाद होर छोटी हो जाएगी अगे। सो ये घटती जा रही है, लाइक असी डिवाइड करते जा रहे हैं किस दे नाल 10 दे नाल। सो ये साडा की बन गया n। दोस्तों ये क्वेश्चन जो NCERT दे विच नहीं है, मैं किसी होर बुक दे विचों लैके तुहानूं एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि तुहाडा जिहड़ा कंसैप्ट है कोई भी टॉपिक जिहड़ा रहना नहीं चाहिए। सो ये आ गया साडे पास n माइनस। सो ये मेरे पास GP है। GP दे विच की है a इज़ इक्वल टू 0.1 है। ईवन तुसीं डेसीमल रिमूव कर सकते हो जे इसनूं 1/10 यूज़ करना है a नूं। इस तरह कॉमन रेशो भी मेरे पास कितनी है 1/10 है, दैट इज़ लैस दैन 1। तो फार्मूले के पर भी फर्क पेगा असीं किहड़ा फार्मूला यूज़ करना है। माइनस सम ऑफ GP लावांगे इत्थे असीं, दैट इज़ a 1/10 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n 1/10 रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r 1/10। सो बड़ी कंपलैक्स जिहा हो गया, इसनूं असीं सॉल्व कर लैंदे हां। 7/9 n माइनस इस दे विच असीं LCM ले लैंदे हां 1/10 10 रेज़ टू पावर n इत्थे मल्टीप्लाई होएगा माइनस 1/10 रेज़ टू पावर n होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 10 माइनस 1/10। सो ये साढ़े पास बन जाएगा 7/9 ब्रैकेट n माइनस। सो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर n की बनेगा मेरे पास 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो वैसे भी इसमें मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं है, इन्हें कैंसल आउट हो जाना है। इसी तरह लिख लेंगे आप 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर n। सो ये की है इसका मल्टीपलिकेटिव इनवर्स जोड़ा है उल्ट की होएगा मल्टीप्लाई होएगा 10/9। देखो 10 माइनस 1 की होएगा 9, 9 नीचे रह जाएगा 10 ऊपर चले जाएगा। सो 10 नाल 10 कैंसल आउट हो जाएगा। सो साढ़े पास ये वाली टर्म्स रह गई ने। जेकर तुसीं इसनूं फरदर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ईवन जे असीं इसनूं सैपरेट कर दईए डिनोमीनेटर इसके नीचे भी लिख लीए इसके नीचे भी लिख लीए 10 रेज़ टू पावर n तो जिहड़ा साडा कैंसल आउट हो जाएगा। बट इत्थे भी जे छड्ड दोगे तद भी ठीक है, 9 के नाल LCM भी ले सकते हो इकल्ले 9 के नाल, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर n विच ले जाने आपां 9 बाहर चले जाएगा साडा। जिवें पिछले क्वेश्चन दे विच गया सी 9 इंटू n की होएगा 9n माइनस 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1/10 रेज़ टू पावर n। 9 असीं बाहर लै जाने दैट इज़ 9 इंटू 9 क्योंकि कॉमन हो गया दोनों का। सो मेरे पास की बन जाएगा ये 7/81। देखो 9 ये नीचे है नहीं सी कॉमन लैण वास्ते तो मैंने मल्टीप्लाई तो डिवाइड करना पएगा इस टर्म के 9/9 लिखना पएगा ताकि आह वाला जो 9 है वो बाहर आ जाए कॉमन आ जाए 9 इंटू 9 बाहर आके की बन जाएगा 81 बन जाएगा। ये वाला 9 की ले लिया मैं कॉमन ले लिया, इत्थे है नहीं सी तो 9/9 लिखना पऊगा मैनू। सो 9n माइनस जे इसनूं मैं सैपरेट कर दिया तो मेरे पास 10 रेज़ टू पावर n ओवर 10 रेज़ टू पावर n माइनस 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 प्लस 10 रेज़ टू पावर n ये कट जाएगा। सो थोड़ा जिहा जिहड़ा क्वेश्चन साडा आंसर है सिंपलीफाई हो गया 9n माइनस 1 प्लस 1/10 रेज़ टू पावर n। जे मैं लास्ट क्वेश्चन के नाल इसनूं कंपेयर करा तो मेरे पास लास्ट टाइम 8/81 आया सी, तो देखो इस बार 7/81 आया है।
भावें कि डेसीमल वाला पार्ट है तो विच वाली फिगर चेंज हो गई है, बट जो कंसैप्चुअल चीज़ आप गल करते सी कि बाहर ये वाली टर्म 81 उपर उही नंबर आना है जिहदे विच तुहानूं सीक्वेंस दित्ती है। जो डेसीमल वाला पार्ट आऊगा तो आंसर ये तो कॉमन सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आना ही आना। लाइक मैं डेसीमल 3 वाला पुछ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, डेसीमल 3 डेसीमल 3 सो ऑन, तो ये की आएगा 3 आएगा इत्थे, तो विच सारी टर्म की आएगी सेम आएगी। जिहड़ा मैं पहला क्वेश्चन की गल की सी उहदे विच भी बाहर वाली टर्म दे विच इत्थे वैल्यू चेंज हुंदी सी ते विच वाली टर्म की आउणी सी सेम। सो दोस्तों इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन आ बुक दे विच होर भी अवेलेबल ने, तुसीं ओह ट्राई कर लिओ प्लीज़, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। इस तो बाद साडे पास सम दे बेस्ड एक दो क्वेश्चन होर ने। सो नैक्सट साडे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरसपोंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। साडे पास दो सीक्वेंस ने, उनके कॉरसपोंडिंग टर्म्स का प्रोडक्ट लेना सी। 2 × 128 ये मेरे पास की बनेगा 256। 4 × 32 ये बन गया मेरे पास 32 दूनी 64 दूनी 128। 8 × 8 64, 16 दूनी 32, 32 × हाफ ये की बनेगा 16। सो मेरे पास ये वाली सीक्वेंस बन गई है, इसका मैं की करना है सम करना है। सो देखो ये ध्यान नाल, जे मेरे पास ये वाली की बन गई है GP बन गई है 256 का हाफ 128, इसका हाफ 64, इसका हाफ 32, इसका हाफ 16। इनू असीं उल्टा के भी लिख सकते हैं ताकि साडा क्वेश्चन थोड़ा जिहा ईजी हो जाए। 16 32 64, क्योंकि असीं सम ही करना है। तो सम अप दे लई देखो हुण साडे पास ए आ गई है 16, रेशो साडे पास कितनी आ गई 2। देखो ये साडे पास 1/2 आ रहा सी, साडा क्वेश्चन थोड़ा औखा हो गया सी, क्योंकि 1/2 पार्ट में सॉल्व करना थोड़ा जिहा औखा काम है। तो इत्थे साडे पास रेशो 2 हो गई है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई ने 5। सो असीं S5 फाइंड करना है। सो SN का फार्मूला होंदा साडे पास A × R⁻⁻1/R-1। सो A मेरे पास 16 है, R2 है R⁻5 -1/2 -1। देखो जे मैं इस इत्थे मैनू ना उल्टांदा इहदे विच सम का फार्मूला ला लैंदा तो मेरे पास सम का फार्मूला की बनना सी, A 256 बननी सी 1 -R, क्योंकि इत्थे कॉमन रेशो की सी एक तो घट सी, तो 1 -R⁻n दैट इज़ 1/2 की बनना सी 5/1 -1/2। तो देखो ए तो ए थोड़ा जिहा क्वेश्चन कंपलैक्स हो गया है, ये लेंथी हो गया है, इनू साडा इत्थे एलसीएम लेना पएगा, फिर कैंसल आउट करने पैणगे। इत्थे ईजी है 2 - 1 की हो गया साडा डायरैक्ट 1 हो गया। 16 × 2⁵ सॉल्व कर लेने असीं। 2 × 2 5 टाइम्स 4 16 दूनी 32 दैट इज़ 32 - 1। सो मेरे पास आंसर की आ गया 16 × 32 - 1 इज़ 31। सो आंसर की होएगा मेरे पास 16 × 16 = 48 ते 1 496। सो सम ऑफ कॉरसपोंडिंग टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉरसपोंडिंग टर्म्स, इन्हां दी असीं जे प्रोडक्ट ले लीए तो इन्हां दा सम की आएगा मेरे पास 496 आएगा। सो दोस्तों इस वीडियो दे विच इन्ने ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जिहड़े ने साडे सम दे बेस ने। नैक्सट वीडियो दे विच असीं ज्योमैट्रिक मीन बारे गल करांगे, तो इस दे बेस्ड जिन्ने भी क्वेश्चन ने चाहे वो NCERT दे ने जां किसी होर बुक के जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, नैक्सट वीडियो दे विच असीं ज्योमैट्रिक मीन के आधार पर सारे क्वेश्चन जिहड़े डिस्कस करांगे। सो उम्मीद है तुहानूं सम ऑफ GP इहदे आधार पर जिहड़े क्वेश्चन ने कंसैप्ट है वो क्लीयर होया होएगा। जेकर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ। जेकर तुहाडी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कॉमेंट सैक्शन दे विच जाके कॉमेंट जरूर करिया करो। होर भी वधेरे वीडियोज़ दे लई मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। चैनल ते आउण लई धन्नवाद।